बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. Hi students, I start with the name of Allah who is the most beneficent and merciful. I hope that you are fine. So this is your English teacher, an English sir, and this is class 9th. I teach you English. So this is, you know that this is a new book for class 9th, English new book for class 9th. We have covered already 3 units from this, unit 1, 1.1. and the last time of the Holy Prophet, unit 2.1, Shamilati Bitai, and unit 4.1, okay, which is Great Visionaries, and the unit 3.1 is left because it is not in the reduced course. That's why I have not taught to you in the class, during the classes. Okay, I have already explained unit 4.1, the Great Visionaries. So today I will start another unit, unit 5.1, health problems caused by mosquitoes. Okay. So the main topic of unit is unit 5 is healthy lifestyle. Okay. So if we will go to unit 5.1, we will see health problems caused by mosquitoes. So pick up the board books and pin page number 108. 108. If you open the book, you will find 108, healthy lifestyle, unit 5. What will I learn? In the start, the things are given as teacher. How will teacher teach you? What should teacher apply as teaching? How to teach their students? Leave that. Come on the unit 109. Pre-reading, reading comprehension, pre-reading. Okay. So work in groups of 3 and write down at least 3 health related problems that people in your area face. Also list down what steps should the people take to protect themselves from some of these problems. Write these in your notebook in the format given below. Health problems, problem steps for protection. अच्छा, प्री रीडिंग से पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दूं कि what is in this unit. Okay, if you will go, there are some problems in your area. Because of these problems, some diseases occurs. For example, due to the stagnant water, malaria occur, dengue occur, chikungunya occurs. So these diseases are mentioned in this book. The symptoms, signs of these diseases and precautions, you can say effects of these diseases. How will you take care from these diseases? Okay, these things are mentioned in this unit. सो ये प्री रीडिंग में ये बताया गया है कि आप लोगों के एरिया में देखिए कि कौन सी डिजीजेज ज्यादा है, कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से डिजीजेज हो रही हैं, तो उसका एक चार्ट बनाया, उसके बारे में आप लोग लिखना है प्रिकॉशंस. ओके, ये प्री रीडिंग मतलब सब पढ़ने से पहले, टेक्स्ट पढ़ने से पहले, बिफोर रीडिंग द टेक्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग द टेक्स्ट, व्हाट शुड यू डू. So health problems, problem number 1, step for protection. जो भी health problems in your area, in your surroundings, where do you live? Okay, you should take any one health problem and what will you do to solve these problem. Okay, ये अपने तरफ से आप लोगों ने लिखना है कि आप लोगों के health problems कौन से हैं, उनको solve कैसे करना है. ठीक है, ये मतलब आप लोगों को आपके एरिया में जा रहे हैं तो वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी प्रॉब्लम, if you find any health problem, then you have to tell how will you solve that problem. How will you solve that problem?
write problem, first step is first problem, second problem, third problem. You can write as you can search the problems in your areas. As much as you are searching the problems in your areas, you must mention that problem, and also you must mention the solution of that problem. Okay. So come to the text, reading text. हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मॉस्किटोज, मॉस्किटोज की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं सेहत में, सेहत की जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों के बारे में जिक्र किया गया है। 3 बीमारियां यहां पे बताई गई हैं। आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू हाउ मेनी डिजीजेस, 3 डिजीजेस। नंबर 1 मलेरिया, नंबर 2 डेंगू एंड नंबर 3 चिकुनगुनिया। These 3 diseases occur due to the malaria bites, okay, or mosquito bites. Sorry, mosquito bites. So let's start the reading. Malaria, dengue, and chikungunya, all 3 diseases are spread by the mosquitoes. 3 diseases ये mosquitoes के जरिए होती हैं, फैलती हैं। The symptoms of all these diseases are so similar that it can be quite difficult to identify them for sure without laboratory testing. इन तीनों की सिम्टम्स बहुत मिलती जुलती है, जब तक लेबोरेटरी टेस्ट नहीं होगा तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा कौन सी डिजीज है। लाजमन है वी शुड टेक द लेबोरेटरी टेस्ट, उसके बाद ही सही प्रॉपर तरीके से इलाज हो पाएगा। But it is important to find out what the exact disease is for it to be properly treated. Okay? लेबोरेटरी टेस्ट होगा तो पता चलेगा कौन सी बीमारी है, उसके बाद ही तरीके से प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट मिल सकती है। Let us try and understand something about the causes, signs, symptoms, similarities and differences and the preventions of these diseases. जो 3 बीमारियां हैं इनकी कोशिश करते हैं कि साइंस कौन से हैं, सिम्टम्स कौन से हैं, उसके अलावा सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग इनसे प्रिकॉशंस या इनसे मतलब हम अवेयरनेस है इनसे बच सकते हैं, हम लोग सेफ कर सकते हैं खुद को। लेट्स स्टार्ट मलेरिया। कॉजेज, असबाब क्या होते हैं, सबब क्या होते हैं जिसकी वजह से मलेरिया बीमारी होती है। मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। मलेरिया एक किस्म के प्लाज्मोडियम से होता है जो न्यूक्लियस में मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस में मौजूद होता है। अ सिंगल सेल पैरासाइट, एक सिंगल सेल पैरासाइट है, वो सिंगल सेल है, एक ही सेल है। पैरासाइट मतलब दूसरों पे भागने वाला, दूसरे लिविंग थिंग्स पे भागने वाला। वो जिंदा रहता है जब दूसरे लिविंग थिंग्स में इन होता है। ऑफन ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। जो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज होते हैं वो हमें बाइट करते हैं, उसके बाद हमें मलेरिया बीमारी होती है। इट इज इंजेक्टेड इनटू अ पर्सन सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू द सेलुलर ऑफ द मॉस्किटो। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, निजाम खून की गर्दिश वाला जो होता है उसमें दाखिल हो जाता है सेलुलर के जरिए। सेलुलर लॉब जो होता है, थूक जो होती है उसके जरिए, जो अब मॉस्किटो के लॉब के जरिए। मॉस्किटो जब भी हमें डंग मारता है या मतलब बाइट करता है तो उसके जरिए हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में इन हो जाता है और हमें मलेरिया हो जाती है। टर्न द पेज। द पैरासाइट्स इन्फेक्ट्स द रेड ब्लड सेल्स अंटिल दे बर्स्ट। अच्छा, ये जो पैरासाइट्स होते हैं मलेरिया के, ये रेड ब्लड सेल आरबीसी पे असर करते हैं। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, दीज आर द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये रेड ब्लड सेल को खत्म करते हैं, उन पे असरअंदाज होते हैं। Then the newly developed plasmodium from the burst red blood cells spreads and infects more red blood cells throughout the body, thus killing all the cells. एक प्लाज्मोडियम रेड ब्लड सेल को जब तक खत्म नहीं करता वहीं पर मौजूद होता है। जैसे ही वो रेड ब्लड सेल खत्म होता है तो बस्ट हो जाता है प्लाज्मोडियम, दूसरे रेड ब्लड सेल में स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, फिर उनको भी असरअंदाज कर देता है। This can lead to severe liver infection. लिवर का भी मतलब जिगर का भी जिगर भी खतरे में हो जाता है, जिगर की बीमारी हो जाती है, उनको खत्म कर लेता है। Sometimes infected red blood cells become stickier than usual and clot easily, which can lead to stoppage of blood flow to the brain, causing cerebral malaria. अच्छा, कभी कभार जो होते हैं वो सख्त हो जाते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जब सख्त हो जाते हैं तो खून भी जम जाता है, क्लॉट हो जाता है खून भी,
तो ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम दिमाग को खून पहुंचाता है, तो वहां पे नहीं पहुंच पाता जमे हुए खून की वजह से स्टॉपेज हो जाता है, रुक जाता है, तो हमें सेरेब्रल मलेरिया हो जाता है, दिमाग का मलेरिया होता है इसको। साइंस एंड सिम्टम्स, ये कॉजेज है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है मलेरिया। ओके, जो इन्फेक्टेड मस्कीटो होता है उसके सैलिविया से हमें मतलब ट्रांसमिट होता है, और हमें ये मतलब रेड ब्लड सेल को प्रेशर करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में जा रहे रेड ब्लड सेल को, और जो खून है उसको क्लॉट करने के लिए भी ये मतलब असरअंदाज होता है। फिर उस वजह से ब्रेन या सेरिब्रल मलेरिया भी हो सकता है। साइंस एंड सिम्टम्स, इनकी निशानियां क्या होती है? जब मलेरिया की बीमारी हो तो निशानियां कौन सी हमें जानी, मतलब हमें कैसे पता चले निशानियों से कि मलेरिया की अलामत है? मलेरिया इज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू हाई फीवर, ज्यादा बुखार होता है हमेशा इसमें, जब भी किसी को मलेरिया होगा तो ज्यादा बुखार होता है। द टेम्परेचर में रीच एज हाई एज 40 सेंटीग्रेड और 104 फ़ारेनहाइट, 104 104 बुखार, या मतलब हम जैसे बोलते हैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में कितना बुखार है, 104 103 104 फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड, 36 से ऊपर सेंटीग्रेड से ऊपर फीवर होता है, या 98.4 से, ठीक है। तो ये हाई फीवर होता है। फीवर इज ऑफन कंप्लाइड बाय चिल्स एंड मे आल्सो इंक्लूड स्वेटिंग। हम जैसे ज्यादा बुखार होता है मलेरिया में, तो हमारा सारा बदन जो होता है उसमें पसीना आ जाता है। उसके अलावा चिल्स मतलब शिवरिंग भी होती है, हमारा कांपने लगता है जिस्म, ऐसे लगता है कोई सर्दी लग रही है। गर्मी के मौसम में भी जिस्म कांपता है कि सर्दी लग रही है, ठीक है। पेशेंट्स में आल्सो सफर फ्रॉम कंस्टिपेशन, किडनी डिस्फंक्शन एंड डिसओरिएंटेशन। पेशेंट जो होते हैं, जो इनके मलेरिया में मुब्तला होते हैं, कब्ज की बीमारी हो जाती है, और किडनीज गुर्दों की डिसफंक्शन, गुर्दे भी काम करना छोड़ देते हैं। उसके अलावा हमें सेंस ऑफ डायरेक्शन का पता नहीं चलता, सराउंडिंग में क्या हो रहा है ये भी कभी कभार हम भूल जाते हैं मलेरिया की डिजीज में, ठीक है। तो ये साइंस एंड सिम्टम्स, 40 सेंटीग्रेड बुखार हो या 104, या उसके अलावा कंस्टिपेशन, किडनी डिसफंक्शन या डिसओरिएंटेशन, ये चिल्स एंड स्वेटिंग। अच्छा, सेकंड डिजीज है डेंगू, दैट इज मलेरिया। इसके काजेज बताए गए हैं, इफेक्ट्स लेटर इन टेल। सेकंड इज द डिजीज इज डेंगू, डेंगू यू कैन से। कॉजेज, द कॉजेज ऑफ डेंगू, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरसेस। डेंगू वायरसेस के 4 टाइप्स हैं, 4 इकसाम है। ऑल ऑफ विच आर स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, सारी जितनी इकसाम है 4 टाइप्स है, वो मॉस्किटोज की वजह से फैलती है, मच्छरों की वजह से फैलती है। Infected mosquito spreads the virus through its saliva when it bites. जैसे ही मतलब ये किसी शख्स को बाइट करता है, डंग मारता है मच्छर, तो उसके से लुआब से या थूक से वो डेंगू वायरस जो होता है मुंतकिल होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ये भी असरअंदाज करता है। डेंगू कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर, एक इंसान से दूसरे इंसान में भी डेंगू ट्रांसफर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, इंफेक्टेड ब्लड यूज्ड इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन कॉज डेंगू। जो खून हम अतिया करते हैं, खून देते हैं किसी को, उसको अगर कोई डेंगू वाला शख्स है, उसको खून मतलब वो खून किसी और को देगा, ट्रांसफ्यूजन करेगा खून की, ब्लड की, कैन आल्सो बी अफेक्टेड। It can also be caused by organ donation and can even be transmitted from the mother to the child. हम कोई organ donate करते हैं किसी अपने रिलेटिव को, उसके मतलब डेंगू के बढ़ने के खदशात होते हैं। फिर भी कोई भी ऑर्गन, कोई डेंगू इन्फेक्टेड पर्सन जो है किसी और को कोई ऑर्गन डोनेट कर रहा है, फिर उसी को भी डेंगू हो जाएगा, जो बिल्कुल नॉर्मल होता है। वो माँ की वजह से, जो माँ दूध दे पिलाती बच्चों को, उसमें भी बच्चे में भी ट्रांसफर हो सकता है माँ की वजह से भी। Once the virus enters the body, it circulates around the body, attacking white blood cells and other antibodies, thus affecting the immune system. अच्छा, ये डेंगू वायरस जो होता है, जब ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर होता है। मलेरिया का वायरस रेड ब्लड सेल और ये व्हाइट ब्लड सेल पर असरअंदाज होता है, और इम्यून सिस्टम व्हाइट ब्लड सेल्स का और एंटीबॉडीज बनाते हैं। मतलब वो एंटीबॉडीज का मतलब है हमारे अंदर में भी एक इम्यून सिस्टम है। वो जो खतरनाक वायरस होते हैं, हमारे अंदर में वायरस मौजूद है, जो खतरनाक वायरस होते हैं उनको रोकते हैं। बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर में भी है, जो खतरनाक वायरस होते हैं उनको रोकने का काम करते हैं
ये उस सिस्टम को खत्म कर देता है, डेंगू वाला वायरस इम्यून सिस्टम पे बहुत असरअंदाज होता है। दिस वायरस फर्दर रेप्लिकेट्स विद इन द सेल अंटिल द सेल बर्स्ट एंड डाइज। जब तक सेल बर्स्ट हो, डाइज हो, तो ये रेप्लिकेट्स हो जाते हैं, मतलब रेप्लिकेट बढ़ जाते हैं, एक से ज्यादा बहुत मिकदार में हो जाते हैं, दूसरे सेल्स में वो चले जाते हैं। The death of the white blood cell results in leakage of other fluids from the cells, leading to low protein। अच्छा, जो जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स बर्स्ट होता है तो ये मतलब लीकेज हो जाती है, तो सब फैल जाता है, बाकी सेल्स में भी फैल जाता है ये डेंगू वायरस। अच्छा, क्या असरअंदाज होता है, फिर क्या मतलब काजेज इफेक्ट्स होते हैं? लीडिंग टू लो प्रोटीन हो जाता है, फ्लड इन द लंग्स एंड पानी जम जाता है फेफड़ों में, एंड स्टोमक एरिया, लो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, शॉक, कभी कभार शॉक भी हो जाता है, शॉकिंग मतलब अचानक झटके आ जाते हैं, एंड इवेंचुअली डेथ, और अचानक मौत हो जाती है, पता ही नहीं चलता डेंगू वायरस से। ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स, इनकी निशानियां क्या होती हैं? असरअंदाज होता है डेंगू वायरस व्हाइट ब्लड सेल पे, और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में भी ट्रांसफ्यूज हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, खून देने में, ऑर्गन डोनेट करने में, मदर टू चाइल्ड। ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स, हाई फीवर इज फॉलोड बाय सीवियर बॉडी पेन, इसमें भी ज्यादा बुखार होता है मलेरिया की तरह, लेकिन मतलब जिस्म में दर्द हो जाता है, ज्यादा दर्द महसूस करते हैं हम सारे जिस्म में। पेन बिहाइंड द आईज एंड डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट इज आल्सो कॉमन, जो आंखों के पीछे मतलब इसका बहुत दर्द होता है, ऐसे लगता है आंखें हमारी फट रही है, ऐसे दर्द होता है। ठीक है, और यूरिन का आउटपुट भी कम हो जाता है, यूरिन का। अच्छा, डेंगू रिलेटेड आई पेन ऑफन इंक्रीजेस विद ब्राइट लाइट, जो डेंगू इंफेक्टेड पर्सन होता है, जैसे ब्राइट लाइट, तेज रोशनी पड़ती है, और भी आंखों का दर्द उनका बढ़ जाता है। पेशेंट्स में आल्सो फील रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज एंड इंटेंस हेडेक, ज्यादा सर का भी दर्द ज्यादा होता है, और सांस में भी तकलीफ होती है डेंगू वायरस से। एज द फीवर डिक्रीजेस स्किन रैशेस में स्टार्ट टू अपीयर, जैसे बीमारी कम हो जाती है डेंगू की, तो स्किन रैशेस, जो रेशे पेड़े पड़ जाते हैं जैसे हर जगह छोटे छोटे। Another symptoms is excessive bleeding, ज्यादा खून भी बहता रहता है इसमें। As the virus attacks the capillaries, the smallest blood vessels in the bodies. When the capillaries burst, blood escapes from the blood stream. अच्छा, ये अंदर ही अंदर खून बहता रहता है, अंदर ही जिसम में खून बहना शुरू हो जाता है। कैपिलरीज का काम होता है आर्टरीज एंड वेन्स को सपोर्ट करना, खून को रोकना, मतलब ट्रांसफर करना आर्टरीज एंड वेन्स में। तो कैपिलरीज भी ये तोड़ देता है वायरस, तो जैसे कैपिलरीज तोड़ देता है तो खून जो है वो फिर इधर उधर फैलना शुरू हो जाता है। In severe cases, bleeding is common in the nose and gums. कुछ कभी कभार मतलब सख्त केसेस में, जो सख्त बीमारी के मुबतला होते हैं, उनके अंदर तो खून बहता रहता है डेंगू आ नहीं, लेकिन जब सख्त मतलब कभी कभार केसेस ऐसे होते हैं कि उनके नाक में भी खून बहना शुरू होता है, और गम्स में, जबड़े में भी। The loss of blood can lead to decreased blood pressure and may eventually lead to internal bleeding, shock and death. जो ब्लड कम हो जाता है तो ये ब्लड कम होने की वजह से इंटरनली हमारा निजाम खत्म, मतलब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, फिर अचानक झटके आ जाते हैं और फिर इंसान मर सकता है या मर जाता है। अच्छा, नंबर 3, ये थी डेंगू की कॉजेज एंड साइंस एंड सिम्टम्स। हाई फीवर, बॉडी पेन, आई पेन ज्यादा मशहूर है इसमें। ठीक है, और ये भी मलेरिया मॉस्किटो के काटने की वजह से होती है डेंगू भी। उसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स पे असर करती है, कैपिलरीज को खत्म कर देती है, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग ज्यादा होती है। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, चिकनगुनिया causes this virus is page number 1111. This virus is also transmitted through mosquitoes. ये भी बीमारी मच्छरों की वजह से होती है, चिकनगुनिया। 3 बीमारियां जो होती हैं वो मच्छरों की वजह से होती है, मॉस्किटोज की वजह होती है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। These mosquitoes live and breed near stagnant or polluted water and infect humans with their bite. ये जो होते हैं या तो खराब पानी में, या एक पानी बाहर बारिश के बाद या बाहर पे या कहीं किसी भी जगह पे पानी खड़ा हुआ होता है,
रुका हुआ होता है, उसकी मूवमेंट नहीं होती है, उसमें ज्यादा मच्छर ये पाए जाते हैं मॉस्किटोस चिकनगुनिया के, जिसमें चिकनगुनिया का वायरस होता है। पॉल्यूटेड वाटर और स्टेगनेंट वाटर, खड़ा हुआ पानी, स्टेगनेंट मीन खड़ा हुआ पानी। आई एम राइटिंग हियर, ओके। हालांकि वो पॉल्यूटेड नाम नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें चिकनगुनिया के वायरस मौजूद होते हैं। एंड इन्फेक्ट ह्यूमंस विद देयर बाइट, और इंसानों को असरअंदाज करते अपने डंग से, मतलब काटने से। Although the disease is not contagious, it can spread from an infected person to others if the mosquito feeds on the infected person first and then bites other people। ठीक है, हालांकि ये डिजीज जो है मतलब एक दूसरे में फैल नहीं सकती है, ऐसे छींक मारने से या खांसने से, जैसे आजकल कोरोना है, लेकिन ये एक पर्सन, फॉर एग्जाम्पल आई एम चिकनगुनिया अफेक्टेड पर्सन, अब मुझे मच्छर ने काटा तो हालांकि मच्छर में चिकनगुनिया का वायरस नहीं होगा, लेकिन मुझसे चिकनगुनिया का वायरस लेके अगर किसी और को काटेगा तो उसको भी हो सकता है। कॉन्टेजियस नहीं है, मतलब छींक मारने से या खांसने से, इससे नहीं, ऐसे नहीं फैलती है। चिकनगुनिया वायरस इन्फेक्ट्स द मसल सेल्स ऑफ द बॉडी। ये मस्कुलर सेल्स जो होते हैं बॉडी के, जो मसल्स होते हैं हमेशा बोन्स को जोड़ने का काम करते हैं, उन पर ज्यादा असरअंदाज होती है, वो असरअंदाज होते हैं इससे। इट स्टे देयर एंड रिप्रोड्यूसेस अंटिल द सेल डाइस। जब तक मतलब सेल डाई हो जाता है, जब तक मरता नहीं है, तो दूसरे भी जल्दी पैदा होते हैं। पैरासाइट इनको बोलते हैं कि भाई लिविंग थिंग्स में वो मतलब भागते हैं, वो लिविंग थिंग से ही खाते हैं खाना, वो लिविंग थिंग में जैसे ही बैठते हैं तो वो खुद भी लिविंग हो जाते हैं, फिर वो दूसरे वायरस भी पैदा करते हैं। ठीक है, जब तक सेल नहीं मरता वो तब तक उसको वो बहुत सारे वायरसेस पैदा कर चुके होते हैं। It then finds a new host cell to infect। नया सेल जैसे होता है, मतलब जो मर गया सेल उसको तो ये खत्म कर देते, जो मर गया नॉन लिविंग थिंग हो गया तो नए सेल में मुंतकिल हो जाते हैं। ठीक है, उनको अपना होस्ट बना देते हैं, मेजबान बना देते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स, इनकी निशानियां कैसे होती है, मतलब अलामत क्या होती है इनकी। चिकनगुनिया यूजुअली अटैक्स द मसल्स, ये हमेशा मसल्स पे अटैक करते हैं। जो होस्ट होता है जॉइंट्स, जो जॉइंट्स मतलब जहां जहां पे जॉइंट्स है, कनेक्टिव टिश्यूज जो कनेक्ट करते हैं, एंड इवन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, नर्व सिस्टम है हमारा, जिसके जरिए हमें मतलब सेंसेस का पता चलता है, समझने का पता चलता है, उसमें बहुत असरअंदाज करता है। जैसे अपनी से यहाँ से ब्रेन तक हम समझ सकते हैं, हमें कोई फील कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा असरअंदाज होता है। इट इज यूजुअली अकम्पनीड बाय फीवर एंड स्किन रैश, ज्यादा बुखार हो जाता है मतलब, और उसके अलावा स्किन रैशेज हो जाते हैं इसके भी। द स्किन रैशेज आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द डेंगू रैशेज। जो स्किन रैशेज होते हैं इनके और डेंगू वायरस, डेंगू मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के तकरीबन सेम होते हैं। द पेशेंट्स में आल्सो सफर फ्रॉम हेडेक, पेशेंट्स को सर का दर्द महसूस होता है, नाजिया, एंड वो जो मतलब जैसे कि नेतली आती है, जैसे कि हमारा अंदर अंदर फीलिंग्स अच्छी नहीं होती है, उसको बोलते हैं। एंड वोमिटिंग, और नेतलियों को भी उल्टियां भी जो आती हैं। बिकॉज द वायरस डिस्ट्रॉयज सेल्स इन द मसल्स एंड जॉइंट्स, पेशेंट्स एक्सपीरियंस मसल वीकनेस एंड जॉइंट पेन व्हिच कैन बी सेवर। वायरस ये असर करता है मसल्स एंड जॉइंट्स पे। पेशेंट्स जो इसके होते हैं चिकनगुनिया के हमेशा मसल्स और जॉइंट पेन महसूस करते हैं, और बहुत ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है ये। Partial loss of taste is also reported by many chikungunya patients। बहुत सारे चिकनगुनिया पेशेंट्स जो होते हैं उनको टेस्ट का पता नहीं चलता कि क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मुझे टेस्ट नहीं पता कि खाने की टेस्ट जो होती है वगैरह वगैरह। The disease is rarely fatal and the virus remains in the system for 5 to 7 days। ये डिजीज इतनी मतलब ज्यादातर मौत मार नहीं होती है, कभी कभार में ज्यादा मौत होती है। ठीक है, वो 5 इनका वायरस होते हैं 5 या 7 दिनों तक रहता है, उसके बाद नहीं। Once one recovers from this infection, one is immune to it for the rest of one's life। एक मर्तबा अगर किसी को चिकनगुनिया हो गया, उनसे बच गया, सारी जिंदगी उनको दोबारा चिकनगुनिया नहीं होगा।
एक ही मर्तबा ये होता है। अगर उससे इंसान शख्स बच गया तो सारी जिंदगी वो दोबारा उस पर अटैक नहीं कर सकता चिकनगुनिया का वायरस। ठीक है, ये तो 3 बीमारियां थी जो मैंने आप लोगों को बताई। ये मलेरिया, हाई फीवर होता है, और उसके अलावा ये रेड ब्लड सेल पे असर करती है, ये व्हाइट ब्लड सेल पे असर करती है, ये मसल्स एंड जॉइंट पेन पे असर करती है। ठीक है, इनकी अलामत भी कुछ है मैंने बताई है। अब सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दीज द 3 डिजीजेस। इनकी सिमिलरिटीज मतलब यकजानियत एक जैसे है या डिफरेंसेस, फर्क क्या है इनमें, जो इनके साइंस एंड सिम्टम्स में, निशानियों में, अलामत में। ठीक है, तीनों डिजीजेस की। द चिकनगुनिया वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटोज दैट स्प्रेड द डेंगू वायरस। चिकनगुनिया वायरस जो है वो सेम मॉस्किटो से मतलब वही मच्छर होता है जो डेंगू वायरस फैलाता है, चिकनगुनिया भी वही फैलाता है, दोनों एक ही मच्छर होता है, दोनों के वायरस वो ले सकता है। ठीक है, both chikungunya and dengue have almost identical symptoms and disease processes. चिकनगुनिया एंड डेंगू में दोनों में अलामत जो होती है तकरीबन एक जैसी होती है। डिजीज प्रोसेस भी सेम होता है, 7-8 दिन या 5-7 से लेकर 7 दिन वो भी बीमारी चलती है, 5 से 7 दिन वो भी बीमारी चलती है। सो मच सो दैट वन कैन बी मिस्टेकन फॉर द अदर, इतना कि एक जो है वो दूसरों मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर चिकनगुनिया हो गया वो कभी कभार समझता है आई एम इन्फेक्टेड इन डेंगू वायरस। ठीक है, तो एक के बदले में दूसरी बीमारी एक जो इन्फेक्टेड पर्सन कहता है कि मुझे ये है, मुझे डेंगू है, मुझे चिकन है, फर्क नहीं पहचान पाता। बोथ डिस्प्ले जॉइंट पेन, दोनों में जॉइंट पेन होता है। हाउएवर जॉइंट पेन इन्फ्लेमेशन काज्ड बाय चिकनगुनिया आर मोर इंटेंस एंड प्रोनाउंस्ड। जो चिकनगुनिया में जॉइंट पेन होता है उनमें जैसे कि जलन जिसमें जलन सी महसूस होती है वो चिकनगुनिया में ज्यादा होता है। On the other hand, low platelet counts, high bleeding risk, and pain behind the eyes are the main symptoms of dengue. डेंगू के symptoms क्या है? लो प्लेटलेट कैपिलरीज में प्लेटलेट्स जो कम हो जाती है। उसके अलावा ये हाई ब्लीडिंग रिस्क भी इसमें होता है। उसके अलावा पेन जो आंखों के पीछे जो पेन होता है, आंखों में जो दर्द होता है, वो भी डेंगू वायरस की वजह से होता है। The main symptoms of malaria are chills and shivering. Main symptoms मलेरिया की है वो chills है, कांपना, सर्दी लगना जिस्म में। ठीक है, हालांकि गर्मी में भी मतलब जून और जुलाई का महीना हो फिर भी सर्दी महसूस होती है। Followed by fever, sweating, या मतलब जो जैसे कि फीवर बुखार होता है और पसीना जिस्म में आता है सारे दिन। These symptoms usually occur every 2 days. हर 2 दिन में ये symptoms जाहिर होते हैं मलेरिया में। ठीक है, प्रिवेंशन, इनसे बचाव कैसे किया जाता है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। ठीक है, इनसे बचाव कैसे किया जाता है, सेफ्टी कैसे दी जाती है, सेफ खुद को डिफेंड कैसे किया, हाउ विल वी सेव फ्रॉम दीज डिजीजेस, वी शुड टेक द प्रिकॉशंस। ओके, since there are no vaccines or medical ways to prevent these diseases, here are a few useful suggestions for protecting oneself from these diseases. अभी तक इनकी कोई वैक्सीन मतलब मखसूस कोई वैक्सीन नहीं है इन तीनों चीजों की, इन तीनों बीमारियों की, मलेरिया की, डेंगू की और चिकनगुनिया की कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनाई गई है। ऐसे ही सेक्सपॉल वगैरह या कुछ दवाई वगैरह यूज करते हैं, बाकी अभी तक वैक्सीन नहीं बनाई गई है। ठीक है, तो हमें इनसे बचाव मतलब बचाव कर सकते हैं, खुद को पहले ही बीमारी से खुद को बचाएं, इर्द गिर्द का माहौल साफ रखें वगैरह वगैरह, मजीद ये बताएंगे इसमें। वेयर क्लॉथ दैट विल कीप यू फुल्ली कवर्ड, ऐसे कपड़े पहने कि आप लोग फुल्ली कवर्ड हो, कोई भी हिस्सा आपके जिस्म का बाहर जाहिर ना हो जिससे मच्छर आपको काट सके। ज्यादातर मच्छर वाले इलाके मतलब मस्कीटो वाले इलाके जहाँ पे ज्यादा मच्छर पाए जाते हैं। यूज नेट कवरिंग्स, नेट जाली मतलब जहां भी हम सो रहे हैं या मतलब जहां भी है वो कवर्ड हो, फुल नेट से कवर्ड हो फुली। लिव इन हाइजीनिक सराउंडिंग्स, वहां पे सराउंडिंग्स जितनी भी हमारी हाइजीनिक हो, मतलब ऐसी कोई चीज ना हो जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर हो, पोल्यूटेड वाटर हो वगैरह वगैरह, साफ सुथरी हो। एंश्योर दैट देयर इज नो स्टेगनेंट वाटर वेदर क्लीन और डर्टी, यकीन करें मतलब खुद को यकीन देख के यकीन करें कि आप यहाँ पे रह रहे हैं वहां पे कोई भी पानी खड़ा हुआ ना हो, चाहे वो डर्टी हो, गंदा हो, चाहे वो साफ पानी हो, खड़ा हुआ पानी ना हो कोई भी। इन योर लोकेलिटी नॉट इवन इन अनकवर्ड लिक्विड्स, पॉट्स, कैन्स और अदर थिंग्स, किसी भी अपने एरिया में
या कोई आप लोगों के घर में यूज करने वाले बाथरूम करने वाले जो बर्तन होते हैं उनमें भी आप लोग पानी को खराबा ना करें। Apply good quality mosquito repellent lotion or any one of the natural repellent products। अच्छे अच्छे लोशन यूज करें या कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट्स है, ऑयल वगैरह यूज कर रहे हैं, सरसों का तेल वगैरह, वो भी मतलब साफ सुथरा होना चाहिए। टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन फ्रॉम डॉन टू डस्क। सुबह से लेकर रात तक आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लें, एहतियात करें। सीक मेडिकल हेल्प एज सून एज पॉसिबल। जितनी भी जल्दी हो सके, अगर कोई भी किसी बीमारी की अलामत है आप में, जितनी भी जल्दी हो सके आप लोग मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब डॉक्टर से रुजू करें। ओके, ऑल दीज डिजीजेस दैट इज मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया अफेक्ट अ पर्सनस हेल्थ। जितनी भी 3 बीमारियां हैं ये इंसान की सेहत पर असरअंदाज होती है। मलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, ये तीनों बीमारियां हमारे सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। They affect the quality of one's work because it takes some time to recover from the weakness caused by them। इंसान का जो ड्यूटी है, जो फराइज सरंजाम देता है, उसमें भी इंसान असरअंदाज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मलेरिया, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, अगर मुझे मलेरिया है तो मैं इलाज करवाऊंगा, ठीक भी हो जाऊंगा, फिर भी कुछ न कुछ 1-2 महीना लग जाता है वीकनेस को रिकवर करने में, खुद को रिकवर करने में। तो मैं सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से 1 या 2 महीना मजीद भी काम नहीं कर पाता, ठीक है, मेरा काम मुतासिर होता है। Since they are all preventable and curable, it is important that we take all possible steps to protect ourselves and our family from these diseases। ये प्रिवेंटेबल, इनसे बचा जा सकता है, इसे क्योर किया जा सकता है, ताकि इसलिए हमें पूरे खानदान में इनके बचाव के लिए एहतियातन तदाबीर लेनी चाहिए। Moreover, we should seek immediate medical help if we observe symptoms of these diseases because the earlier they are treated, the quicker is the recovery। उसके अलावा हमें जल्दी जल्दी जो भी बीमारी की कोई अलामत हो रही है, अगर मलेरिया, चिकनगुनिया या जो अलामत बताई गई है उनमें से कोई भी फील हो रही है डेंगू वायरस की, तो आप लोगों, हम लोगों को जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। इससे हम लोग जल्दी ही रिकवर हो सकते हैं। ठीक है, ये है रीडिंग टेस्ट जो हमने पढ़ाया था, हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मॉस्किटोज। ये 3 हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है, जो मच्छरों की वजह से होते हैं, 3 बीमारियां होती है, बल्कि 4 सेरेब्रल मलेरिया भी है, लेकिन दैट इज अ काइंड ऑफ मलेरिया। It is a kind of malaria. We can say that that is a part of also malaria. So 3 diseases are mentioned here: malaria, dengue, and chikungunya. We should take precautions or preventions to avoid or to save ourselves from these diseases. Okay, if we feel any symptoms or signs, then we should go to the doctor or we should go for the checkup, okay, for the treatment as soon as possible। तो ये 3 बीमारियां होती हैं और 3 बीमारियों के साइंस एंड सिम्टम्स बताए गए हैं और किन किन पे असरअंदाज होते हैं, मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। इन तीनों बीमारियों से बचने के लिए हमने खुद को और सराउंडिंग्स को, wherever we are living, we should save ourselves and our surroundings from these types of mosquitoes who always bring or get viruses of these 3 diseases। In that way, we can also save, we can also be healthy, we can also save ourselves from these types of diseases। Okay, let's come to the solution of exercises। I will provide also, the school will also provide you the notes or contents where you can search the solution of these all exercises। Okay, I am also discussing these exercises with you। There are 8 exercises given in the 8 exercises are given in this unit। Number first exercise, page number 112, come to the exercise number first in the book and come to the exercise number first, page number 112। while reading, पढ़ने के बाद, मतलब जब पढ़ रहे थे आप, उसके बाद आप लोगों ने क्या समझा है इसमें। It is very easy if you have understood the chapter or unit, it is very easy to solve the exercises। So we will take the right answer। The text is about, text किसके बारे में है? The life cycle of mosquito, different kinds of dangerous diseases, diseases caused by mosquitoes, use of pesticides for mosquito controls। The text is C is correct option, diseases caused by mosquitoes। जो 3 diseases है mosquitoes की वजह से हो रही है। ठीक है, अच्छा, exercise number 2,
सर्कल द डिजीजेज मेंशन इन द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट में यहाँ पे कुछ डिजीजेज दी गई है, इनको जो टेक्स्ट में मेंशन की गई है, द डिजीजेज व्हिच आर मेंशन इन द टेक्स्ट, यू शुड circle these diseases, circle these diseases, which are the diseases given here, tuberculosis. ओके, तो हम लोग जो है 4 डिजीजेस को सर्किल करेंगे, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, सेरेब्रल मलेरिया। Okay, 4 diseases. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diseases mentioned here. We have to circle 4 diseases only. I am repeating, listen carefully. Malaria, चिकनगुनिया, डेंगू, cerebral malaria. Exercise number 3, vocab is given, vocabulary is given here. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 words are given here. Okay, parasite, transmitted. You can search the meanings of these words from your from the dictionaries. If you have not dictionary, you can search it. Come the last pages of the book. Page number 216 page number. Glossary is given. In glossary you can find the meaning of the words. Okay, here is the glossary. Page number 11216, sorry. Okay, for example, number 1 word is parasite. You will go in the glossary and you will come the alphabet P. You will search the alphabet P, here is a P. Parasite, P-A-R-A, page number 220. This is the parasite. Okay? An animal or insecta. Okay? You must write down that in your copy. Okay, this is the exercise number 1 and 2 is the bookish exercise. You can solve that in the book. And exercise number 3, words meaning. You should write down in the copy. Okay, I will also, school will also provide you content. Next, exercise number 4. Above words, you have to make the sentences of the above words, 20 words. Sentences in your own. Okay. For example, mosquitoes are the virus of mosquito. There are so many parasites, viruses present surrounding us. Okay, around us. Okay. Such type of sentences you can make your own. You should make your own sentences. Simple or difficult, you should make your own sentences. I will advise you or suggest you that you should make simple sentences. आसान sentences बनाएं, ताकि you should learn how to make a sentence clearly and correctly. If you start to make sentences difficult, then you will not learn how to make sentences correctly and easily. Number 5, exercise number 5. Read the text and select the correct answers from the options, given options, such type of MCQs. Okay, keep in mind, it is important to find out what the exact disease is so that ये क्यों जरूरी होता है कि हमें सही बीमारी का सही अंदाजा लगाना चाहिए कि कौन सी बीमारी है, क्यों जरूरी होता है, why is it necessary, क्यों the patient can rest, क्या ताकि पेशेंट जो है वो आराम कर सके, बीमारी का अंदाजा लगा के आराम कर सके. We can tell everyone about it, ताकि जो पेशेंट बीमार हो उसको सबको बताए कि मैं बीमार हो गया हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ. It can be treated properly, हमें बीमारी का सही तरीके से अंदाजा लगाना चाहिए ताकि हम इसको सही तरीके से ट्रीट कर सकें या सही तरीके से इनका इलाज कर सकें. द पेशेंट कैन डिसाइड व्हाट टू डू, या पेशेंट डिसाइड करे कि अब क्या करना चाहिए. नंबर सी इज करेक्ट, इट कैन बी ट्रीटेड प्रॉपरली, ताकि उसका बीमारी का सही तरीके से पता चले, सही तरीके से हमें इलाज करवाएं उसका. कंसर्न हम डॉक्टर के पास, फिजिशियंस के पास चले जाएं. नंबर 2, द मलेरिया पैरासाइट्स अटैक्स, द मलेरिया पैरासाइट्स जो होते हैं किस पे अटैक करते हैं, कौन से सेल्स पे अटैक करते हैं. व्हाइट ब्लड सेल्स, नो. डेंगू वायरस व्हाइट ब्लड सेल पे असर करता है. ब्रेन, नो. स्टमक, नो. रेड ब्लड सेल्स, मलेरिया का जो वायरस होता है वो हमेशा रेड ब्लड सेल्स पे असर करता है, हेमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल्स पे असर करता है. नंबर 2 का डी इज करेक्ट. नंबर 3, व्हेन द डेंगू वायरस एंटर्स द सिस्टम इट अफेक्ट्स द, एक मतलब डेंगू वायरस जो सिस्टम में एंटर होता है किसको अफेक्ट करता है. इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम. डेंगू वायरस हमेशा इम्यून सिस्टम पे असरअंदाज होता है, हमारा इम्यूनिटी वाला सिस्टम जो है उस पर असरअंदाज हो. ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर.
Number 4, in severe cases of dengue, bleeding may occur in the, जो डेंगू कैपिलरीज पे असरअंदाज होता है. कैपिलरीज का काम होता है आर्टरीज एंड वेन्स को जो मजबूत करना, जहां से ब्लड होता है, आर्टरीज एंड वेन्स में ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, उनको मतलब जोड़ने का काम करती है कैपिलरीज. कैपिलरीज जब फट जाती है, उधर उधर हो जाती है, तो खून लेना शुरू हो जाता है. तो डेंगू वायरस जो है वो कैपिलरीज पे असरअंदाज होता है. तो उसकी वजह से कहां से खून बहता है, बैरूनी मतलब बाहर, अंदर तो है लेकिन बैरूनी फिजिकल जो बात हो रही है. आइज एंड ईयर्स, नो, आइज पेन होता है, ब्लड नहीं बाहर आकर जाहिर होता है. ब्रेन, नो. स्टमक एंड इंटेस्टाइन, नो. गम्स एंड नोज, गम्स और नोज से ब्लड आना शुरू हो जाता है. ठीक है. चिकनगुनिया, नंबर डी इज करेक्ट आंसर. नंबर 4, नंबर डी इज करेक्ट आंसर. Option 114, page number, exercise number 5. Number A, MCQ number 5. Chikungunya patients usually have fever with dash. चिकनगुनिया के पेशेंट्स को फीवर के साथ क्या जाहिर होते हैं जिस्म में? शिवरिंग मलेरिया, नो. रैशेज, हाँ रैशेज जाहिर होती है. ब्लीडिंग एंड चिल्स, ब्लीडिंग डेंगू एंड चिल्स भी मलेरिया क्या, रैशेज जाहिर होते हैं जिस्म पे. Propose reading, exercise number 6 पे आ जाए. Read the text and complete the following table in your notebooks. ये जो एक्सरसाइज नंबर 6 है, यहाँ पे आप लोगों ने ये नोट टेबल दिया गया है. 1 2 3 4 कॉलम्स है इसमें. मैं आप लोगों को दिखा दूं. दिस वन 4 कॉलम्स है. इसमें सबसे पहले डिजीज, सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ऑर्गन, सेल्स, अटैक, सिम्टम्स. ये आप लोग खुद कर सकते हैं. 3 डिजीजेस, 3 कॉलम है, 3 डिजीज. यू हैव टू मेंशन 3 डिजीजेस इन द 3 कॉलम्स. फर्स्ट, number first, malaria. What is the source of malaria? Source of transmission, mosquitoes. Organs, cell attack, red blood cells, RBC. Symptoms, high fever, chills and sweating. Number 2, dengue. Source of transmission, mosquitoes. Mosquitoes and organs, cells attack, white blood cells, WBC. एंड फीवर, बॉडी पेन, आईज पेन. बॉडी पेन नहीं होता लेकिन आईज पेन डेंगू वायरस में, याद रखिएगा. चिकनगुनिया, मॉस्किटोज. नंबर 3 डिजीज, नंबर फर्स्ट कॉलम में, तो नंबर 3 कॉलम चिकनगुनिया, मॉस्किटोज, मसल सेल्स. ऑर्गन कौन से अटैक होते हैं? मसल सेल्स. सिम्टम्स, फीवर, स्किन रैशेज. ओके, ये एक्सरसाइज नंबर 6 हमने सॉल्व किया. एक्सरसाइज नंबर 7 जो है क्वेश्चन आंसर्स है. I will give you, so school will give you the content and you will find the answers of these questions in these content. Okay, I will provide. There are 10 questions. What are the most common diseases caused by mosquitoes? Very easy. कौन सी आम बीमारियां होती है जो मच्छरों की वजह से होती है? Malaria, dengue and chikungunya. The most common disease is caused by mosquitoes. Which specific part of the body becomes highly infected in cerebral malaria? So, what can lead to severe liver infection when one has malaria? There are 10 questions and you have to solve yourself. First, you should try to yourself solve. After then, the school will provide you content. You will find the answers of these questions there. Okay, exercise number 7 and exercise number 8. Come to the exercise number 8. In exercise number 8, there is assignment for you. Exercise number 8. Okay, or some pattern or sample is given that you have to write the malaria or like that pattern. I will also show you malaria, its causes, prevention, symptoms and advices. You have to write down yourself. Go through back to your text and you search which are the causes of the malaria, what are the symptoms of malaria, how can we prevent from the malaria or prevention of the malaria, and your advice. Okay, that is your assignment number 1. I will check the assignment and that is very mandatory. Assignment is very mandatory. I will give you the marks according to the assignment also. There are some marks for the assignment. I reserved some marks the assignment. Okay, I am writing here the assignment. I am writing here the assignment topic also. You also note down, and it is also given in page number 115. Okay, exercise number 8 is assignment. Okay, so
Write down the silent topic, for example. Assignment number 1, the first semester final. This is the topic. Okay. 2 steps are for this topic. 2 or 3 steps. 3 steps, sorry. Now, first step, try. This is the first step. You have to try to launch a campaign to create awareness about the following diseases. अपने एरिया में जहाँ आप लोगों की जहाँ पे पहुँच है वहाँ पे जाएं और अवेयरनेस मतलब कैंपेन ये उनको बताएं लोगों को कि भाई इन बीमारियों की क्या मतलब उनसे बचा जाए, कैसे बचा जाए. ठीक है, यू मस्ट ट्राई, कोशिश लाजमी करनी चाहिए. ठीक है, अपने इर्द गिर्द के लोग जो लोग हैं, अगर नहीं तो अपने घर वालों पे ही अप्लाई कर सकते हैं आप लोग. ठीक है. You have to first make the flow chart. How will you aware your the persons who are surrounding in your areas? How will you? First of all, you make the flow chart of these diseases. Then through these, through that time after that, where you will make the awareness among the people who are living surrounding you. Okay. For example, sample. I am giving the sample of flow chart. Here you write, I mention disease, causes, advice. Okay, this is exercise. Let me show the exercise number, this one. This is the exercise number 8, page number 115. Okay, here the sample is given here also here. Okay, first of all you will see disease, malaria is causes, symptoms, prevention, advice. Disease, causes, symptoms, prevention, advice. Okay, here is 115 page number. Okay, let me explain the thing. Assignment. You have to make the flow charts of these all diseases, 3 diseases. You have to make the assignments. Okay, 1 or 2 or 3 pages or 4 pages of assignments, and also cover it in a minute or in covering. This is assignment number 1. Topic: try to launch a campaign to create awareness about the following diseases: malaria, dengue and chikungunya. आप लोगों ने कैंपेन मतलब लॉन्च करवानी है, मतलब आप लोगों ने जाना है कुछ जो जिस जहाँ आप पहुंच सकते हैं, जहाँ आप मतलब इंसानों से मतलब जिस लोगों से आप लोग मिल सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप एक शहर से दूसरे शहर जाएं. इर्द गिर्द के जो भी लोग हैं उनको आप लोगों ने अवेयरनेस मतलब में लानी है कि भाई इन तीनों बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है.
प्रिवेंशन प्रिकॉशंस कैसे ली जाए, मतलब पहले एहतियातन तदाबीर कौन सी ली जाए। ठीक है, आजकल जैसे कि डेंगू कोरोना वायरस की भी कैंपेन हो रही है, तो आप लोग इस तरीके से भी कोई कैंपेन तीनों बीमारियों के बारे में कर सकते हैं। अपने घर वालों से ही पूछ लिया, अगर कोई नहीं जा सकता तो ठीक है बाहर। डेवलप अ फ्लो चार्ट ऑफ द डिजीजेज मलेरिया, चिकनगुनिया एंड डेंगू। ये तीन डिजीजेज है, मलेरिया मैंने आगे पीछे लिखी है, डेंगू नहीं है कि सीरीज में हो, लेकिन तीनों बीमारियां हैं। मलेरिया ये मॉस्किटोज की वजह से होती है। इनका फ्लो चार्ट बनाए ताकि जब आप लोगों से वो पूछे जिसको आप लोग बताने जा रहे हैं, तो आप लोगों हम कैसे लें, तो आप लोगों में मुश्किलात ना हो। यू शुड नॉट फील डिफिकल्ट टू टेल देम, you should not feel difficult to tell them the causes of these symptoms of these that disease, prevention or advice. You should make the flow chart first of all. Okay, इस फ्लो चार्ट में भी आप लोग वही असाइनमेंट है, दैट इज असाइनमेंट, यू हैव टू मेक द फ्लो चार्ट। आप लोगों ने फ्लो चार्ट बनाना है, उसमें बयान करना है कि आप लोग अवेयरनेस के लिए कैंपेन कर रहे हैं, तो उनको आप लोग कैसे कैसे, मतलब कौन सी डिजीज है, कौन सी डिजीज के बारे में बताएंगे, उनके कॉजेज कौन से बताएंगे, सिम्टम्स कौन से बताएंगे और प्रिवेंशन कौन से बताएंगे, उनसे बचा कैसे जाए। और मशवरा क्या होगा आपको लोगों मतलब आपका लोगों को आप क्या मशवरा देंगे, उनको एडवाइस क्या देंगे, व्हाट विल बी योर एडवाइस। ओके, so that type of flow chart you have to make, and that is your assignment. It is your research work. If you will make the research work, then you will be creative. If you will be creative, then you can understand everything very easily. Okay, the teachers will not be available with you. You have to make yourself, you have to take efforts yourself, and you should open the mind and you should be creative. In such way you will know, you will exceed your creative power. Okay, so that's all. I hope that you have understood about the unit 5.1 health problems caused by mosquitoes. और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपने इर्द गिर्द में या मतलब इन तीनों बीमारियों से एहतियातन तदाबीर लेंगे और आप भी इन तीनों बीमारियों से खुद को सेव कर रखेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।